Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics and the Indian economic development. Okay. So from the previous few classes we were continuously revise the chapters. We have done numbers of the numerical questions related to the macroeconomics as well as Indian economic development. Okay. Simultaneously we have also discussing the some chapters of the theoretical part like foreign exchange rate, income determination and the multiplier, national income, the items which is included or not included in national income or the domestic income, balance of payment, government budget, excess demand, deficient demand, excess, when we talk about when the AD is more than the AS and when the AD is less than AS, and the situation is AD, full employment situation, under full employment, over full employment situation. So as we have discussed all these, after that we have started to solve these some previous year papers. First of all, we have discussed the CBSE sample paper 2020, which is issued by the CBSE in October 2020. We have already discussed. After that we have started the topic that is CBSE examination paper 2020. We have already completed, and from the previous few classes we were continuously solving the paper that is CBSE examination paper 2019. So as we already discussed CBSE examination paper 2019 Delhi set, and after that we have started the CBSE examination paper 2019 All India set. Okay, so along with this we have also solving the paper CBSE examination paper 2019. So we have discussed the questions which is related to set 1 and also discussing the set 2 and set 3. So some questions are still left to calculate the values of the some other question and the theoretical parts. Okay, so in today's class we are going to study the or solving the other questions. Okay, so let's get started. Okay, so let's start with the calculating the question number 23, the part A and part B. Part A हम लोगों ने last class में discuss कर लिया है, define net export and the how is the net export is different from the net factor income from abroad. We have already discussed in the last class. The question that we are going to calculate is calculate the value of interest. 23 part A we have already discussed. It is of 6 marks. Okay, so calculate the value of interest from the following data. Okay, so the data is given here. Particulars, serial number, particulars and rupees in crores. Okay, तो यहाँ पे दे रहा है सीरियल नंबर 1 2 3 4, इनडायरेक्ट टैक्स IT 1500, सब्सिडीज 700, प्रॉफिट्स 1100, consumption of fixed capital, that is depreciation, is given 700. GDP at NP दिया है 17,500. Compensation of employee COE 9,300. Interest is missing. MI is given, mixed income is given, that is 3,500, and rent is given 800. राइट, सो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट हियर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ठीक है,
अब हम लोग करते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड आउट। ओके, सो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट हम लोग को किस में मिलता है, आपको याद होगा ऑपरेटिंग सरप्लस में। और नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड हम लोग कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू, हमें पता नहीं है, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जीडीपी एमपी ऑलरेडी गिवन है, सो जीडीपी एमपी यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो नेट है और ग्रॉस है तो माइनस डेप्रीसिएशन, डी इज कॉमन, एफसी है तो माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जीडीपी एमपी कितना दिया आपके पास 17,500 माइनस डेप्रीसिएशन कितना है, इट इज 700 माइनस एनआईटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स 1500 माइनस सब्सिडीज इज 700। ओके, तो ये क्या हो गया 1700 500 माइनस 700, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 माइनस 800, ये हो गया आपका 1500। तो कितना हो गया 17,500 माइनस 1500 दैट इज 16,000। सो एनडीपी एट एफसी आपका आ गया depreciation is given 1100, wait a minute, IT profit is indirect tax is 1500, subsidies is 700, profit is that is given। so अभी यहाँ पे देखो आप लोगों को क्या है कि डेप्रीसिएशन यहाँ पे कितना दे रहा है, डेप्रीसिएशन आपको दे रहा है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 700, ठीक है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है 700, तो ये आपका आ गया कितना 16,000 आ गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इट इज गिवन 16,000 इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया हुआ है 9,300, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट दिया है 1100, और क्या है प्रॉफिट के अलावा, रेंट है 800, इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट ही करना है, इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम दिया है 3,500। ओके, सो 16,000 हो गया यहाँ पे, इसको सम कर लीजिए 9300 8 9 10 11 12 12 13 14 15 17 1 10 13 14 14,700 प्लस इंटरेस्ट, ये कितना हो गया 16,000 माइनस 1400 700, 1,300, तो इंटरेस्ट आ गया आपका 1,300 रुपीज 1,300 करोड़, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, अगर इंफॉर्मेशन गिवन है आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज ऑलरेडी है आपके पास, यू हैव टू पुट ओनली दी वैल्यूज, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9,300 800, it is given 1100 3,500, yes 1 2 3 4 1 2 3 4, और एक x की वैल्यू इंटरेस्ट आ गया आपका 1,300 करोड़। ओके, तो देखिए इसकी हेल्प से सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट कर लेंगे हम, उसके बाद निकाल के फिर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मिक्स्ड इनकम, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में जो वैल्यू दी है वो तो ठीक है,
जो नहीं दिया है उसकी वैल्यू आप रखो और वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए फिर से वही है कि यस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एडजस्टमेंट दैट में टेक प्लेस इन एन इकोनॉमी जब एक्सेंट सेविंग एक्सेंट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाएगा, ये हम लोग ने कर ही लिया है। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस ऑफ द बैंकिंग सिस्टम यूजिंग अ हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल, वही है कि क्रेडिट क्रिएशन इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 ले लेते हैं, फिर LRR 20% ले लेते हैं, तो उसके जो भी क्रेडिट क्रिएशन है मनी मल्टीप्लायर से कितने मल्टीपल टाइम्स हो जाता है, जो प्रोसेस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफाइन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन से कैसे डिफरेंट है, और इसी में क्वेश्चन दे रहा है कि आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ते हैं। So the next question that we are going to solve is, that is in an economy, question number 14, in an economy the equilibrium level of income, the equilibrium level of income is rupees 12,000 crores. The ratio of MPC and MPS, रेशियो इसमें दिया है, रेशियो ऑफ MPC एंड MPS इज 3:1, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट द additional investment needed to reach a new equilibrium level of income of 20 crore rupees, 20 crore, ओके। सो द क्वेश्चन इज गिवन हियर, यहाँ कह रहा है कि एक इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना दिया है, रुपीज 12,000 करोड़ दिया है, और द रेशियो क्या दे रहा है, MPC एंड MPS का 3:1 दे रहा है। फिर क्या करना है, हम लोग को एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, नीडेड टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम दैट इज 20 करोड़। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो क्या दिया है, इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, दैट इज MPC अपॉन MPS इक्वल टू 3/1, ठीक। MPC और MPS क्या है, रेशियो में दिया हुआ है 3:1। तो लेट अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, हमको पता है MPC प्लस MPS इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, MPC अज्यूम कर लेते हैं कि x है, ठीक है। सो 3x प्लस 1x इक्वल टू 1, राइट। 3 है MPC, 1 है x, हम लोग को अभी वैल्यू तो पता नहीं है, हम लोग लिख लेते हैं इक्वल टू 1, ये हो गया आपका 4x, देन x इक्वल टू 1/4, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/4 आ गई। अब अगर हम लोग x को कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 1/4, यस 0.25, मतलब ये जो x वैल्यू है, मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी, MPS की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सो MPS इक्वल टू 0.25, क्योंकि हम लोग ने अज्यूम कर लिया था, क्योंकि ये 1 में दिया है, तो हम लोग ने अगर हम लोग 0.25 इंटू 1 करेंगे तो आंसर विल बी द सेम। अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, MPC। सो MPC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x मीन्स 3 इंटू 0.25, तो ये हो गया आपका 0.75।
आ गया। अब इसको आपको अगर रेशियो में देखना है तो आप 0.75 अपॉन 0.25 करेंगे तो 3:1 में ही आएगा। ठीक है, 25 हो गया और 75, 25 3 जा 75, सो 3:1 के रेशियो में आ गया। अब हमें यहाँ पे पता चल गया एमपीसी की वैल्यू। अब हमको यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे के की वैल्यू निकालेंगे, के अपॉन 1 माइनस एमपीसी। के अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी क्या आ जाएगा, के की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। के अपॉन 1 कितना है, 1 इज 1 सॉरी 0.25 सॉरी 0.75, सो 1 अपॉन माइनस करेंगे 0.25, देन के इक्वल टू 4 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ पे आपको कह रहा है कैलकुलेट दी एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट मीन्स डेल्टा आई यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो कैलकुलेट दी दैट इज 0.75। फिर क्या कह रहा है, यस अब क्या कह रहा है आपको, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट को करने को कह रहा है जब न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है 20 करोड़ है। ठीक है, अब हम लोग सॉरी 20,000 करोड़ है। अब एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, 20,000 माइनस 12,000 एडिशनल इनकम निकल गई ना, डेल्टा कैसे आई निकालेंगे, 20,000 माइनस 12,000, ये आपका क्या हो गया डेल्टा वाई हो गया, तो ये कितना हुआ 8,000 आपका डेल्टा वाई हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। सो के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये तो फॉर्मूला है। के की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, 4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई आपको पता है 8,000, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये हो गया आपका 4 डेल्टा आई इक्वल टू 8,000, देन डेल्टा आई इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाई 4, देन डेल्टा आई इक्वल टू ₹2,000 करोड़। आ गया आंसर, यस। सो डेल्टा आई आ गया आपका ₹2,000 करोड़, यही आपका क्या है इसका आंसर हो गया। ठीक है, सो ये ₹2,000 करोड़ आपका क्या हो गया, एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकल गया। देखिए 2 लेवल इनकम दी हुई है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एमपीसी एमपीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद हम लोग ये जो फॉर्मूला उस पर पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। प्राइमरी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे आपको नेशनल इनकम क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो वी नीड सम मोर स्पेस, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कैलकुलेट नेशनल इनकम। आपको यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है बाय द प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्या कह रहा है, दिया आपको रुपीस अमाउंट इन करोड़ में दिया है, GVA MP बाई प्राइमरी सेक्टर दिया है ₹2,400 करोड़। फिर है PFCE प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 6,000 करोड़। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 1,200। NIT इज 960। GVA MP बाई सेकेंडरी सेक्टर ये है 1,000
600. नेक्स्ट है चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक दे रहा है -160. Then GVA MP by tertiary sector is 5,600 crore. 6, 7, 6, 9th is ND, net domestic fixed capital formation. ये दे रहा है 1,760. Then 9th is net import. Net import is given, that is 400. फिर है 10th is GFCE, government final consumption expenditure is given. It is GFCE is 1,200. And last one 11th is NFIA, net factor income from abroad is 160. ये आपको क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन क्या है ऑलरेडी गिवन है. आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड एंड द एक्सपेंडिचर मेथड, राइट. अब हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, बाई फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट मेथड से. ओके, अब देखिए, अब इसमें क्या कह रहा है, GVMP बाय प्राइमरी सेक्टर, GVMP बाय सेकेंडरी सेक्टर, GVMP बाय टर्शियरी सेक्टर. तो हम लोग सीधे जब GVMP दिया है, GVMP क्या हो जाता है, अगर तीनों सेक्टर का दिया है दैट मीन्स इट इज GDP एट MP. सो GDP एट MP कैसे हो जाएगा, GVMP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GVAMP of secondary sector plus GVAMP of tertiary sector, right. तो ये हो जाएगा आपका GVAMP by primary sector है 2,400, GVAMP of secondary sector 1,600 plus GVAMP of tertiary sector by 5,600. इसको सम कर लेंगे, कितना आएगा 2,004,1600 5600 52789 9,600. सो GDP एट MP आ गया आपका 9,000 रुपीज 9,600 करोड़. आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम, दैट मीन्स NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है. तो GDP MP नेट निकालना है माइनस डेप्रीसिएशन. ओके, यहाँ पे क्या नेशनल है प्लस NFIA फिक्स कॉस्ट है माइनस NIT, राइट. GDP MP आपका कितना आ गया 9,600 माइनस डेप्रीसिएशन कितना दिया है 1,200, NFIA कितना दिया है 160, NIT कितना दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 960. ओके, सो 9,600 1,200 960 कितना हो गया 2,160 प्लस 160 9,600 माइनस 2,000, ये आपका आ गया 7,600, राइट. सो NNP एट FC इज इक्वल टू ₹7,600. ठीक है, सो ये आपका एक आंसर आ गया. नेशनल इनकम बाय द प्रोडक्ट मेथड हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया.
ये कैसे हुआ? एकदम सिंपल सा था, क्योंकि हमें पता है जीवीएमपी और जीडीपीएमपी में डिफरेंस तो ऐसे नहीं होता, क्योंकि हम लोग जीवीएमपी जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं कि पूरी इकोनॉमी की बात नहीं करते हैं, हम लोग किसी एक इंडिविजुअल सेक्टर की बात करते हैं कि इतना। बट जीडीपीएमपी क्या होता है, वो ज़्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है, क्योंकि हम लोग उसमें पूरे इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है उससे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीवीएमपी प्राइमरी सेक्टर का दिया था, जीवीएमपी सेकेंडरी का दिया था, जीवीएमपी टर्शरी का दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जीडीपीएमपी हो जाएगा, क्योंकि सारे सेक्टर का है। देन एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी 9600 कैलकुलेट किया था, डेप्रिसिएशन 1200, एनएफआईए प्लस 160, एनआईटी माइनस 960, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट 7600 कैलकुलेट हो। नेक्स्ट जो हमें करना है वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, सेकेंड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते हैं। सो जीडीपी एमपी इक्वल टू पीएफ सीई प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ प्लस यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है? जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की दिया है 6000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 1200, जीडीसीएफ आई थिंक सो नहीं दिया है यहाँ पे, आप लोग को यहाँ पे दिया है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और आप निकाल रहे हो जी। ओके, जी निकालना है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 1760, इसको हम लोग को एनडीसीएफ या जीडीसीएफ बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? चेंज इन स्टॉक को प्लस करना पड़ता है। बट चेंज इन स्टॉक यहाँ पे -60 में दिया है, -160, देन -160 प्लस, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 1200, ये 1200, और यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट नहीं दिया, नेट इम्पोर्ट दिया है। तो जब नेट इम्पोर्ट है तो ये कंट्री के लिए लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस नेट इम्पोर्ट इज 400। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। -1760 minus 160 2800 minus 400 7200 प्लस 2400, ये हो गया आपका 9600 करोड़, राइट। जीडीपीएमपी निकल गया। अब देखिए सेम वही चीज हो गया आपका, हम लोग यहाँ पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, सो जीडीपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, सो 9600, डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 1200, एनएफआईए कितना दिया है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहाँ गया? 160, एनआईटी 960, ये आपका आ जाएगा ₹7,600। एनएनपीएट, जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे, वेदर वी आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, सारे मेथड से क्या होगा? ये इक्वल ही आएगा। ठीक है, कोई भी हम लोग मेथड करेंगे यहाँ पे इक्वल ही आएगा, चाहे हम लोग प्रोडक्ट मेथड से करें। हाँ, ये अलग बात है कि आप अगर वहाँ से जीडीपीएमपी निकालिए और उसको पुट करने लगे कि जीडीपीएमपी, यहाँ तो सेम आ गया, बट दोनों कंटेक्स्ट में हम लोग अलग करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट मेथड में हम लोग बस प्रोडक्शन की बात, एक्सपेंडिचर में मतलब कहाँ कहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है हम बस उसकी बात करते हैं। ठीक है, उस केस में ये नहीं कि आप इनकम मेथड से जीडीपीएमपी कैलकुलेट किए और यहाँ पे एनएनपीएट फैक्टर कॉस्ट उस वैल्यू से कैलकुलेट करने लगेंगे, एकदम नहीं। हम लोग को यहाँ पे जीडीपीएमपी कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय द एक्सपेंडिचर मेथड। जब यही सारी वैल्यूज जब आएगी ही नहीं, हम लोग प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे तो वो प्रोडक्शन मेथड हो जाएगा ना, कि प्रोड्यूस जितना हो रहा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। वही सेम चीज़ इनकम कितना जनरेट हो रहा है हम उसकी बात नहीं कर पाएंगे, हम लोग बस यहाँ पे जो जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उस कंटेक्स्ट में अगर एक्सपेंडिचर मेथड से हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे,
एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ओके, सो ये था आपका हम लोगों ने क्या किया आज, हम लोगों ने पेपर के क्वेश्चंस पढ़े, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इनकम डिटर्मिनेशन के पढ़े, नेशनल इनकम के पढ़े, थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े, ओके। सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. We will continue to solve the paper in the next class also. Okay, thank you.